आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। रियासी वज़रा केटी रामा राव के ईश्वर मोहम्मद महमूद अली ने एलबी स्टेडियम फतेह मैदान में मुनक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में एक ही रोज़ में 24 माज़ूरीन में 24 करोड़ 37 लाख की मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें 16,600 अफराद में तकसीम करने के इक़दाम किए गए। वज़ीर IT केटी रामा राव ने बताया कि हुकूमत की जानिब से रियासी वज़ीर के ईश्वर की जानिब से माज़ूरीन जिनमें गूंगे, बहरे और दीगर शामिल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल, बैटरी व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, लैपटॉप और इंटर और डिग्री तलबा में 4G स्मार्टफोन्स तकसीम किए गए, जो रियासती हुकूमत का तारीख़ी इक़दाम है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माज़ूरीन के वजीफे में 500 रुपये से इजाफा करते हुए क़ब्ल अज़ां 1500 रुपये और 3016 रुपये फराहम करने के इक़दाम किए। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हमारी हुकूमत माज़ूरीन को डबल बेडरूम स्कीमात में 5% कोटा मख्तस किया और उनकी तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तक़रीब में रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, मला रेड्डी, अराकीन असम्बली व कौंसिल व आला अहदेदार भी मौजूद थे। అందరికీ మరోసారి స్వాగతం। శ్రీ కేటీఆర్ గారు విచ్చేశారు, మరికొద్ది క్షణాల్లోకి వేదిక మీదకి రానున్నారు। ఈరోజు ఇదే వేదిక మీద ఇంకొక చక్కటి కంపెండియం లాంచ్ కూడా జరగబోతోంది। ఈ కంపెండియం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ రిలీజ్ చేసినటువంటి జీవోస్ కానీ సర్క్యులర్స్ కానీ గైడ్ లైన్స్ కానీ చక్కగా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది। 1983 నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి జీవోలు సర్క్యులర్లు మీరే దివ్యాంగుల శాఖ కలిసి నిర్వహించాయి। తెలంగాణలోని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను స్టార్టప్స్ని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వారందరినీ కూడా దివ్యాంగుల సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకమైన ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చి మీరు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు తీసుకొని రండి, మా దివ్యాంగ సోదరులకి సోదరిమణులకి వారికి రిలీఫ్నిచ్చే, వారికి కొంత సౌలభ్యాన్ని చేకూర్చే పరికరాలను తీసుకొని రండి అని చెప్పి ఒక ఛాలెంజ్ మనం ప్రారంభించడం జరిగింది। ఆ రోజు నాకు నెక్లెస్ రోడ్లోనో ఎక్కడో పెట్టినట్టు గుర్తుంది, మరి చెన్నారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్లోనో ఎక్కడో పెట్టినారు। నాకు బాగా గుర్తుంది కొన్ని అందులోని ఆవిష్కరణలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మంత్రి గారి నేతృత్వంలో, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో ఆ రోజు ఆవిష్కరణలు ఏవైతే కొన్ని వచ్చినాయో, ముందుకు వచ్చినాయో, ఈరోజు వాటిని అందిపుచ్చుకొని బ్రహ్మాండంగా వాటిని ఈరోజు వేల మంది వికలాంగుల సోదరులకి, దివ్యాంగ సోదరులకి అందిస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ముఖ్యంగా గొప్ప విషయం ఏమంటే ఇప్పుడే మేము గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో అందరం కూడా మొత్తం స్టేడియం అంతా తిరిగి వాహనాలు ఏవైతే ఈరోజు 900 వాహనాలు ఏవైతే మీకు ఇస్తా ఉన్నారో, రెట్రో ఫిట్టెడ్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్, స్కూటీని తీసుకొని దానికి 2 చక్రాలు అమర్చి మీకు కాళ్ళు లేకపోయినా బ్రహ్మాండంగా మీరు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఏ పని అంటే ఆ పని చేసుకునే విధంగా దేశంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా ఒక 1000 వాహనాలు ఈరోజు మీకు అందిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। దాంతోపాటు బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వీల్ చైర్స్, మీకు శారీరక శ్రమ లేకుండా, చేయిలకు కూడా కష్టం లేకుండా మీకు బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వీల్ చైర్స్ ఈరోజు ఒక 650 అందజేస్తా ఉన్నారు। హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు। బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ట్రైసైకిల్స్ కూడా అందజేస్తా ఉన్నారు। ఇంకా సంతోషం ఏమంటే చదువుకునే పిల్లలకి ల్యాప్టాప్స్, దాదాపు ఒక 300 ల్యాప్టాప్స్, అదే రకంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్, 4G స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా దివ్యాంగులైన సోదరులకి సోదరిమణులకి ఒక 400, అందులో ముఖ్యంగా హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం, వారి సౌలభ్యం కోసం, ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుకుంటున్న హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక 400 స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా అందజేస్తా ఉన్నారు। వీటితో పాటు ట్రైసైకిల్స్ కూడా ఒక 1500 అవి కూడా అందజేస్తా ఉన్నారు। వీల్ చైర్ किम्स के साबिक डायरेक्टर व नामवर डॉक्टर काकरला सुब्बाराव इंतकाल कर गए। किम्स के डॉक्टरों ने बताया कि जुमे की सुबह उनका इंतकाल हो गया। मूजी मर्ज में मुब्तला सुब्बाराव को 1 माह कबल किम्स अस्पताल में दाखिल किया गया था।
सुब्बाराव की मौत पर कई अजीम हस्तियों ने इजहार ताज़ियत किया है और उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया है। सुब्बाराव सन 1925 में कृष्णा जिले में किसान खानदान में पैदा हुए थे। स्कूली तालीम चल्लापल्ली में हुई थी और कॉलेज की तालीम मछलीपट्टनम हिंदू कॉलेज में हुई। उन्होंने विशाखा आंध्रा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बाद में हाउस सर्जन बने। तिब में आला तालीम की खुसूसी इनाम के साथ वो अमेरिका चले गए। 1955 में अमेरिकन बोर्ड ऑफ रेडियोलॉजी का इम्तिहान पास किया। 1954 से 1956 तक उन्होंने न्यूयॉर्क और बाल्टीमोर के अस्पतालों में काम किया। वो 1956 में वतन वापस आए और हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर दाखिला लिया। बाद में उनकी तरक्की उस्मानिया कॉलेज में चीफ रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर हुई। बतौर डायरेक्टर निम्स अस्पताल हैदराबाद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने साल 2000 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने निम्स के साबिक़ डायरेक्टर और माहिर डॉक्टर काकरला सुब्बाराव की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए दुख का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मेडिकल के शोबे में उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि निम्स अस्पताल के डायरेक्टर की हैसियत से उनकी खिदमात काबिल सताइश है। CM KCR ने काकरला के लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का भी इजहार किया है। तेलंगाना में कोरोना लहर मुकम्मल तौर पर खतरे के दायरे में आ चुकी है। हर फर्द इससे मुतासिर हो रहा है। कई अफराद की अमवात हो रही हैं। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में बहैसियत खिदमत अंजाम देने वाले वजीर अजमेर चंदूलाल कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी के ईश्वर और दीगर ने इजहार ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि उनकी मौत से TRS पार्टी का भारी नुकसान हुआ है। उनके अफराद खानदान से उन्होंने इजहार ताज़ियत भी की। वैएस शर्मिला की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। वाज़ेह है कि वो कल धरना चौक पर भूख हड़ताल का आगाज किया था। इख्तिताम पर वो धरना चौक से अपनी क़यामगाह लोटस पॉन्ड पर यात्रा की थी, लेकिन अफरा तफरी के माहौल में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर रात देर गए रिहा कर दिया था। वो आज लोटस पॉन्ड के रूबरू दूसरे दिन भूख हड़ताल का आगाज किया। शर्मिला ने कहा कि मैं बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत के एलामिया को जारी करने के लिए हुकूमत से जिद्दोजहद कर रही हूँ। मेरी भूख हड़ताल नई नस्ल के हौसले बुलंद करेगी। 7 साल से नौजवान एलामिया का इंतजार कर रहे हैं। शर्मिला के वालिदा विजय अम्मा ने आज भूख हड़ताल कैंप आकर अपनी दुख्तर से इजहार यगानगत भी किया। महबूबाबाद TRS की रुकन पार्लियामेंट मालवत कविता का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, जिसके बाद वो डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक वो हैदराबाद में उनके घर पर अलग थलग रह रही हैं। रुकन पार्लियामेंट ने मशवरा दिया कि वो अपने हालिया दौरे के दौरान जो भी उनसे मुलाकात की थी उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए और सबको मुहतात रहना चाहिए। तेलंगाना में कोरोना वबा उरूज पर है। पिछले कुछ दिनों कोरोना रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हो रहे हैं। रियासी महकमा सेहत ने जुमा के रोज एक सेहत के बुलेटिन में कहा कि पिछले 24 घंटों में 3840 मुस्बित वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में मुस्बित केसेस की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है। फिलहाल फ़ाल मुकदमात और होम आइसोलेशन में हैं। जिले नारायणपेट के उटकूर मंडल में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में
बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। बरखी पोल्स टूट गए। इसकी वजह से बरखी की फराहमी में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुश्तरका महबूबनगर जिले के कई मुकामात पर भी बारिश हुई। जिले सिद्दीपेट के कोहिड़ा में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में कोहिड़ा मंडल के तुंगली गांव में वाक़ घर में रात देर गए आग लगने से बुजुर्ग जोड़े की मौत हो गई। 80 साला वी नरसैया और 70 साला लच्छम्मा मियाँ बीवी हैं। गुज़िश्ता रात उनकी झोंपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में झोंपड़ी मुकम्मल तौर पर झुलस गई। दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी जिंदा झुलस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। रियासत उड़ीसा के बदनाम जमाना गैंगस्टर हैदर को संगारेड्डी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना कर्नाटक सरहद पर तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मजकूरा गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हैदर नल्लकल मंडल के कलमबील देहात में रह रहा था। हैदर उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। मुलजिम चंद रोज कबल उड़ीसा के एक अस्पताल में जेर इलाज था और वहां से फरार हो गया था। उड़ीसा हुकूमत ने ऑपरेशन हैदर का आगाज करते हुए उड़ीसा पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस और संगारेड्डी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। तेलंगाना कोरोना की लहर खतरे की लपट में आ चुकी है। सरकारी व खानगी दवाखानों में मरीजों का अस्तधाम देखा जा रहा है। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ अवाम परेशान है। तेलंगाना में कई मुकामात पर ग्राम पंचायत करारदाद मंजूर करते हुए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3840 नए केसेस सामने आए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 505 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। जिले वकाराबाद के पोडूर मंडल में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार डीसीएम वैन मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और शदीद जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकामी लोगों की मदद से जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त बूरा नरसापेट मंडल के शिवा और मालकिया के नाम से हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। నేను కవర్ చేస్తున్న వీడియో కొద్దిసేపు ఆగి మీరు కవర్ చేయరు. दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।